हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में हमने पिछले क्लासेस में ही पढ़ा था। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। ओके, सो लेट्स नो अबाउट वर्ब्स इन डिटेल। First topic is verbs. A verb is a word which expresses an action or tells something about a person or thing. वर्ब जो है वो वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को और हमें बताता है किसी पर्सन और थिंग के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सेंटेंसेस देख सकते हो। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, राज गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर प्ले और गोज जो है ये डूइंग हो गया, डूइंग वर्ब हो गए हमारे। ओके, नेक्स्ट वन, अमन इज अ गुड बॉय, टीचर वाज एंग्री विद मी। यहाँ पर इज और वाज आपके बीइंग वर्ब हो गए। ओके, नेक्स्ट वन, अ बाइसिकल हैज टू व्हील्स, लॉर्ड कृष्णा हैड अ फ्लूट। यहाँ पर हैज हैड आपके क्या हो गए? पोजेसिंग हो गए। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। जो मोस्ट ऑफ द वर्ब जो है वो हमारे क्या है? डूइंग वर्ब्स है। ओके, सो वी हैव सेपरेट फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स टू शो द प्रेजेंट टाइम, द पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम। हमारे पास सेपरेट फॉर्म होते हैं वर्ब के जो शो करते हैं प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को और फ्यूचर टाइम को। ओके, be is the only verb that denotes being. Is, are, am, was, were, will be, shall be are various forms of the verb be. be जो है वो only verb है जो denote करता है being को। is, are, am, was, were, will be, shall be ये जो है ये various forms है verb be के। okay, is, are, am refer to the present time. is, are, am जो है ये present time को refer करता है और they are used to make journal statements। और या फिर ये जो है ये हम use करते हैं to make the journal statements। ओके, was, were refer to the past time। was, were जो है वो past time को refer करता है। ओके, will be, shall be refer to the future time। will be, shall be जो है वो future time के लिए refer करता है। have shows possessing, have, has, had, will have, shall have are its various forms। have जो है वो possessing को show करता है। have, has, had, will have, shall have इनके various forms होते हैं। ये मतलब have की ही various form है। okay, have and has refer to the present time। have and has जो है वो present time को refer करता है। had refers to the past time, had past time को refer करता है। will have and shall have refer to the future time, will have और shall have future time को refer करता है। now before going further there is a point, remember most verbs are doing verbs। ज्यादातर जो verbs होते हैं वो doing verbs होते हैं। be and its form suggest being, be and its form जो है वो suggest करते हैं being को। have and its form suggest possessing, have और उसके form possessing को suggest करते हैं। there can be no sentence without a verb। और कभी भी आपको एक sentence बिना verb के नहीं मिलेगा क्योंकि verb क्या है? sentence का heart है। okay, now let's know about object of a verb। look at these sentences and the questions that follow। okay, so आपको यहाँ पर ये जो sentences दे रखे हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। first one, Priya likes chocolate। what does Priya like? chocolate। We say chocolate is the object of the verb likes। जो chocolate है वो object है of the verb like। okay, next thing, Raju wants money। what does Raju want? money। and students यहाँ पर waste नहीं होगा, money होगा। ठीक है, अच्छा sorry, repeat। next one, Raju waste money। what does Raju waste? money। money is the object of the verb waste। money जो है वो object है कौन से verb का? waste का। okay, now the next sentence, I love Rohit। whom do I love? Rohit। okay, Rohit is the object of the verb love। रोहित जो है वो object है कौन से verb का? love का। okay, now the next sentence is, the teacher praised Nisha। whom did the teacher praise? Nisha। Nisha is the object of the verb praised। Nisha जो है वो object है कौन से verb का? praised का।
यहाँ पर आपने देखा कि कैसे वर्ब के साथ उस ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। लुक एट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, प्रिया लाइक्स, देन Raju waste, next I love, then the teacher praised. We notice that these sentences are incomplete. The verbs in these sentences require object to complete their sense. These verbs are transitive verbs. अब हमने नोटिस किया कि ये जो सेंटेंसेस है ये इनकम्प्लीट है, और जो वर्ब इन सेंटेंसेस में हमें जो चाहिए, ठीक है, द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है इनको क्या चाहिए, इसे चाहिए ऑब्जेक्ट, ओके, ताकि एक कंप्लीट सेंस बन सके उस सेंटेंस का। सो ये जो वर्ब्स है ये हमारे क्या है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ओके, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें ये बोला गया है कि इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए, ओके। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ताकि एक सेंटेंस का पूरा सेंस जो है वो कंप्लीट हो सके, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। Now before going further there is a note, only doing verbs or verb showing position need objects। सिर्फ doing verbs या फिर verb जो position को show कर रहे हैं उसको objects की requirement होती है, okay। Now look at these sentences। Rahul shouted, Humi laughed, the child cried, wind blew। These sentences are quite meaningful. The verbs in these sentences do not require any object to complete the sense। These verbs are intransitive verbs। अभी जो हमने सेंटेंसेस पढ़े उसमें आपने देखा होगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ओके। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। तो जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेंस बनाने के लिए, बट वो जो है एक गुड सेंस बनाता है अपने आप ही, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इनकम्प्लीट वर्ब्स कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अशोक, Simi seems, the teacher appears, the boy looked। The verbs in these sentences are is, seems, appears, looked. These verbs do not make complete sense by themselves. They need some words to complete the sense। अब यहाँ पर हमने जो वर्ड देखे जैसे is, seems, appear, looked, ये वर्ब तो है, पर ये जो वर्ब है ये कंप्लीट सेंस नहीं क्रिएट कर रहे, तो हमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स चाहिए जिससे एक सेंटेंस जो है ये कंप्लीट बना सके, कंप्लीट सेंस क्रिएट कर सके, ओके। जैसे कि Ashok is happy, Simi seemed sad, the teacher appears angry, the boy looked upset। The verbs in these sentences do not express an action. They do not show position also. We call them incomplete verbs। The word added to them to complete the meaning and to form a complete predicate is called complement to the verb। सो यहाँ पर बोला है कि अभी हमने जो वर्ब पढ़े सेंटेंसेस में वो एक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई पोजीशन भी शो नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट वर्ब है। क्या ये इनकम्प्लीट वर्ब है? और जो वर्ड इसमें ऐड होते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को बनाने के लिए, एंड टू फॉर्म कंप्लीट प्रेडिकेट, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बोलेंगे, ठीक है। A word required to form a complete predicate is called complement of the verb। वो verb जिसको चाहिए कि वो एक complete predicate बना सके उसे हम complement of the verb बोलेंगे, ठीक है। Now before going further, let's remember ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि कंप्लीट सेंस बने सेंटेंस का। नेक्स्ट वन, इन ट्रांजिटिव वर्ब मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने आप ही एक गुड सेंस बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनकम्प्लीट वर्ब नीड्स सम वर्ड्स एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस। इनकम्प्लीट वर्ब में कुछ वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू मेक द सेंस, ओके। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको ये जो फॉलोइंग एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।